ये क्यों नहीं हो रहा है इसमें? कैसे शेयर करेंगे इसको? क्या सर? सर आप ये आपका स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है सर, आप कोई भी टैब ये कर लीजिए, वो आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा। हो जाएगा? हो गया विजिबल? यस सर, यस सर, विजिबल। हाँ, ठीक है। ओके, ये पेटेंट एजेंट रिलेटेड फी आ गया ना? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, गुड। मैं ना 3:15 की जगह 3:20 की जगह 3:45 तक ले लेता हूँ क्लास में। परसों भी ये हो गया था, थोड़ा लंबा चल जाती है हमारी क्लास। ओके सर। तो कितने लोग हो गए? चालू कर दूँ मैं थोड़ा सा? यस सर, यू कैन स्टार्ट नाउ सर। सर 20 स्टूडेंट्स हो गए सर। ठीक है, इनका अटेंडेंस थोड़ा केयरफुल लेना, हमने 10 मार्क्स इसी में से देना है। यस सर। ठीक है, अच्छा। नाउ ऑल अदर्स कैन हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ओके, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। अच्छा देखो, ऐसा है कि जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, ये फीस डिस्कस किया था ना, एंड यू नो दैट ये 800 है तो ये 8000 हो गया लास्ट 5 ईयर्स में। जो फर्स्ट 4 ईयर्स का था, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ईयर वाला, 2000 becomes 20,000, 4000 becomes 40,000. So it becomes prohibitively expensive to renew your patent after 15 years. तो जो बहुत ही essential patent हो, that only should be renewed. So that is to discourage companies to continue their monopoly on the patent. So when we say that the patenting is possible up to 20 years, that is not necessarily 20 years, it is up to 20 years. Okay, so this is something very carefully to be kept in mind. It is up to 20 years you can have it. Achha, now when you file a patent application, there are 3 ways of doing it. Either you can do it on your own, or you can seek help of a patent agent. Okay, or you can seek help of a patent attorney. The patent attorney is the legal person, and patent agent is a scientist or engineer. Because to become a patent agent, the necessary qualification is you should be science or technology graduate. And those who are science or technology graduates, they can appear in the patent agent examination, which is conducted by Controller General of Patents, Designs and Trademark. Okay, in short we say CG. CG means Controller General, and Controller General of Patents, Designs and Trademark, that is the full designation of the person. He is heading the India's patent office or IPR offices. So that the controller's office conducts the exam, and sometimes every year, sometimes once in 2 years, sometimes once in 3-4 years also, depending on, because that is not the conducting examination or their priority, but they conduct this examination, and it consists of 2 papers. One paper is what all we are studying in this particular course, that is a general IPR paper, and second paper is on patent claim drafting. Okay, they given something. Suppose there is a you see that needle जो है उसमें एक hole है, उसमें you put the thread, and suppose it is being invented for the first time. So how will you, before that the needle for stitching, hand stitching, the needle did not exist. Suppose फर्स्ट टाइम यू हैव इन्वेंटेड कि ऐसे धागे को इस तरह से थ्रेड करके और वी कैन डू स्टिचिंग। तो आपने कहा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है, और था भी जिस ज़माने में हुआ फर्स्ट टाइम, तो उससे पहले स्टिचिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो आप इसका क्लेम ड्राफ्ट करो, तो इस तरह से किसी भी चीज़ का वो क्लेम ड्राफ्ट करवाएंगे, और उसमें आपकी दोनों पेपर्स में इफ़ यू गेट 50% और मोर मार्क्स, देन यू गेट ए इंटरव्यू कॉल. And in the interview also, if you score more than 50% marks, then you qualify to become patent agent. So the fee for appearing the patent examination is 1,600 rupees, and once you qualify the examination, all the 2 theory papers, and then
if you get 50% marks in both the theory papers individually, then the interview, and there also you get 50% marks plus, then you get the you are eligible to be eligible for registration as a patent agent, and that registration fee is 3,200, and annually you have to renew it. That is 800 rupees per annum you have to pay for the renewal of your patent agents, being patent agent. What happens that patent agent is the person who is uh, depending on, suppose your invention is more related to electrical or electronics, the patent agent should also have that electrical or electronics background. If your if your uh, if your thing is on chemistry or chemical based, then the person who is a patent agent, if he is a chemistry background person, then he would be the right person to uh, prepare your application. And so diagrams and everything, he knows that how to prepare it systematically, because it is not a admission application you keep on filling your this thing, or job application. It is much more complex than that. Diagrams, figures, their interpretations, all these things, so it requires some kind of expertise. And if you go to a patent attorney, so each patent attorney would have some patent agent on a tie-up basis, or if it is very big patent attorney, then he will have 3 or 4 patent agents on his own roles or on the contractual basis. Suppose he charges X rupees from you, he will give 0.2x or 0.3x to the patent agent. The patent attorney will also ask some patent agent who are in touch with him, who are on his panel, to prepare the patent application. And in that application, the technical person will draft the claims. Suppose you have got something happens, for that the reaction has to take place at 70 degrees Celsius. You say in your claim ki at 70 degrees Celsius this will happen, and following this will happen, and then this will happen, and this is our invention, and that is so useful. So now the patent agent has done it, or you have done it, but the attorney will feel that if suppose somebody is able to do the same thing in 69 degrees Celsius temperature, so he say I am not infringing the patent. Patent says it is 70 degrees Celsius, and I am doing it at 69 degrees Celsius. So I am not infringing patent. Anybody can use your invention without infringing. So the claims should be drafted in a very good manner, that it gives you best possible protection. So suppose the patent attorney will ask the inventor, if suppose it is 69, is it possible? So the inventor says, हाँ possible है भी और नहीं भी है. If it is 68, हाँ मतलब chances are that it may not be so good, but it is possible. So he says कि why not I say 60 to 80, उससे तो क्रॉस नहीं करेगा, 80 से ज़्यादा नहीं होगा, नहीं उससे तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं हो सकता. It has to be between 60 and 80 only. So the patent attorney will modify the claims, fine tune, revise the claims that this reaction will take place between 60 to 80 डिग्री सेल्सियस. अब कोई भी उसको यूज़ करता है आपके इन्वेंशन को, तो उसको वो इन्फ्रिंज माना जाएगा. अगर उसने 65 पे किया आपका रिएक्शन को, या 67 पे किया, 63 पे किया, तभी इन्फ्रिंजमेंट हो गया. तो प्रोटेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. तो दिस इज व्हाट द टास्क ऑफ द पेटेंट अटॉर्नी. So if you go through the only patent agent and not through patent attorney, so there may be some weaker protection in the claims you are having. Okay, so आपके जो claim में ही आपका protection है सारा. So is this point clear to all of you? Yes, sir. So what is patent agent? Can you repeat again? Patent agent is a person who is science or technology graduate, and he has passed 2 written examinations with 50% marks in each of them. One is the general IPR, which we are studying in this course. Other is claim drafting. And if you get a score more than 50% in both the papers, then you qualify to be called for interview. And in the interview also, if you score more than 50%, you have qualified as a patent agent. And Okay. and as a patent agent, I just told you that
you know, once you qualify as a patent agent, the patent agent examination, which is conducted by Controller General of Patents, Designs and Trademarks, his office conducts the examination. The application fee is 1,600. If you qualify the examination, you register yourself as a patent agent, you pay 3,200, and then every year you pay 800 rupees to renew your patent agent's certification. Okay, you are registered patent agent. So then it is an independent. Anybody can become the patent agent, and yes, all of you are, once your graduation is complete, those who are pursuing the final year of graduation, you should be graduate. Bachelor's degree you should have, whether it's 3 year or 4 year. So bachelor's degree in science or technology, or pharmacy, or anything which is more in the science and technology areas, biotechnology, anything, electrical, electronics, information technology. So you should have a degree in that, bachelor's degree. You should qualify in these two written papers, and if you qualify with 50% plus marks in both the papers, each of the papers, then you are called for interview. And if you get more than 50% marks in the interview, you have qualified the patent agent examination. Now you qualified, but unless you register it, like you do LLB, so you have completed your law, but unless you register with the Bar Council of India, you are not a you cannot practice in a court of law. So patent agent registration is acceptable in case the patent agent can represent you, as I told you last time, that suppose the patent application has been filed. Now, when it is published that is ready for grant, somebody opposes it. So when somebody opposes it, so who will give a reply on your behalf? You may give the basic reply, but the patent agent, who is a technically qualified person, he will give you the this thing in a more effective manner. Okay. Sir, what is bar council? नहीं, मैंने तो बताया था कि जैसे बार काउंसिल में आपका कोई अटॉर्नी होता है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, या जो भी कोई कोर्ट होता है, सेशंस कोर्ट, तो हर एक बार काउंसिल, हर स्टेट का एक बार काउंसिल होता है. बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ, so the person who is registered as a lawyer with any bar council of that state, he can practice in that state. Okay, up to high court. Is it clear? So then it means there is a dedicated attorney for patents, like patent attorney. Yes. Patent attorneys are specialized lawyers. They have specialized in IPR, and they don't take civil or criminal cases at all. They take only IPR. Okay. And some are patent attorneys, some are trademark attorneys, some are design attorneys. But normally the people who are the patent attorneys, they also do the design attorney job also. So patent design, trademark is a little different. So there are people who deal with the trademark. They are, it is like this, ki somebody is expert, somebody is MBBS doctor. One person is surgeon, other is medicine. I mean, surgeon also, a person is eye surgeon or heart surgeon or what surgeon. Then a person eye surgeon. In that also a person has got a specialization in retina. Okay, so it is the era of specialization. You keep on specializing in something. So what is your micro specialization? That becomes very important, because you can plead your cases more effectively if you have more knowledge about it. Okay, so Right. So, and so this last time you told that there are some persons who ensure this patent certification. So patent agents are also the same person who are issuing the certification, or who are the patent grant is done by the patent office, which is the government of India. Okay. Patent agent is a private individual, like advocate. Advocate तो गवर्नमेंट का नहीं था, प्राइवेट होते हैं ना सब एडवोकेट. ओके. लॉयर साहब, जो आपको कहीं केस करना है, कोई फाइल करना है, तो आप लॉयर के पास जाएंगे, वो आपकी एप्लीकेंट ड्राफ्ट करेगा. उसमें बहुत सारी लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, हम लोग नहीं ड्राफ्ट कर सकते उसको. पर जिसने लॉ किया हुआ है 3 साल या 5 साल का जो होता है आजकल नेशनल लॉ स्कूल्स में,
और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में 5 साल का होता है लॉ आफ्टर 12th। तो वो जिसने लॉ किया हुआ है वो 5 साल तक पढ़ाई की है, उसने किसी लॉयर के साथ में काम किया है कुछ साल तक, 2-4-5 साल, तो उसको उतना प्रैक्टिस हो गया, उसको समझ में आ गया, सारी लैंग्वेज लिखना सीख गया वो, तो वो अपने आप केस ले सकता है कुछ एक। तो जो बड़े लॉयर्स होते हैं वो खुद थोड़ी सारी चीज़ें लिखते हैं A to Z, वो अपने बता देते हैं ये केस है, इसका फाइल बना के लाओ, तो फाइल बना के लाते हैं। तो उसमें है कि 75% काम तो जूनियर लॉयर करता है, जो कि 2-4 साल का ही जिसको एक्सपीरियंस होता है, और जो बिल्कुल फ्रेशर होता है, ट्रेनिंग होता है, वो बनाता है उसको, जो 3-4 साल जिसको काम करते हो वो देखता है उसको, उसके बाद में, और जिसको 10 साल से काम कर रहा है। देयर अटॉर्नी फॉर्म्स इन इंडिया हु हैव गॉट 100+ अटॉर्नीज, 100 से ज़्यादा पेटेंट अटॉर्नीज हैं, ऐसी भी फॉर्म्स हैं इंडिया में, 100 से ज़्यादा पेटेंट अटॉर्नीज हैं एक ही लॉ फॉर्म में। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे गॉट केसेस वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड की कोई भी फाइल करता है इंडिया में, तो जो टॉप की कंपनीज हैं, लॉ फॉर्म्स हैं, अटॉर्नी पेटेंट लॉ फॉर्म्स हैं, उनको कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमारे को ये इतने, और वो कहते हैं कि हमारे कि 2000 केसेस फाइल होंगे हर साल, हमारे 1000 केसेस फाइल होंगे इंडिया में हर साल। तो तो इसका सा मतलब है कि पेटेंट एजेंट्स अ पर्सन हु इनिशियली ड्राफ्टिंग के समय हेल्प करते हैं, व्हेन देयर इज एनी पेटेंट एजेंट अ पर्सन हु बेसिकली ड्राफ्ट द पेटेंट एप्लीकेशन ओके इन कंसल्टेशन विद द साइंटिस्ट इन्वेंटर। इन्वेंटर बताएगा कि मैंने ये कर दिया, तो वो पेटेंट एजेंट ने उसका सर्च भी तो करेगा ना, कि राइट जो आपने इन्वेंशन किया, आपको तो लग रहा है इन्वेंशन में, क्या पता है पहले किसी ने कर रखा हो पेटेंट, हो सकता है ना किसी जर्नल पब्लिश होगा, तो कुछ पहले से होगा, इसको बोलते हैं प्रायर आर्ट सर्च। तो जो प्रायर आर्ट का जो सर्चिंग का काम है वो तो पेटेंट एजेंट करेगा ना। करेक्ट सर। और वो प्रायर आर्ट में आपकी नॉवल्टी निकली, ये नॉवल्टी है, ये वर्ल्ड में नहीं हुआ ऐसा पेटेंट, नॉवल्टी है, तो वो कह के हाँ भाई इसको हम फाइल कर देते हैं। तो उसके वो सारी चीज़ें लिखेगा, पूरी एप्लीकेशन बनाएगा, ड्राइंग और सारी इक्वेशन, जो भी कुछ जैसे भी उसके रिएक्शन जो भी कुछ है, मैकेनिकल है, इक्विपमेंट है, फंक्शनिंग है, उसके जो भी उसके मैकेनिकल चीज़ है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी चीज़ है, उसको सारी चीज़ को ड्राफ्ट करेगा एप्लीकेशन। लेकिन अटॉर्नी जो LLB है वो तो नहीं कर सकता ना, उसको साइंस टेक्नोलॉजी नहीं आता। राइट सर। तो ये जो पेटेंट एजेंट है वो डिफरेंट फील्ड में होता है, तो मैकेनिकल का अलग होगा, तो नॉर्मली मैकेनिकल फिजिक्स का एक ही वो होता है, तो उसमें कि मैकेनिकल कोई ज़्यादा इंट्रिकेट केस है तो वो जो खासतौर से ज़्यादा स्पेशलाइज है मैकेनिकल को उसको जाएगा। पर नॉर्मली जो है मैकेनिकल की चीज़ें फिजिक्स वाली हैं, जो दोनों एक ही एक दूसरे का देख लेते हैं नॉर्मली। तो ओके सर। तो इलेक्ट्रिक का है, केमिकल इंजीनियरिंग का है, केमिस्ट्री का है, तो उस तरह से वो सारे जो हैं वो जो जिस एरिया का पेटेंट एजेंट है, जिस टेक्नोलॉजी फील्ड का, साइंस फील्ड का, वो बहुत समय से कर रहा है। पहले उसने किसी बड़े सीनियर पेटेंट एजेंट के साथ में लग के काम किया, तो जो 15-20 साल 25 साल पुराना पेटेंट एजेंट है, और वो A to Z सारे काम खुद नहीं करता ना। वो कहता है देखो ये मेरे पास में 10 केसेस हैं, तुम मेरे जूनियर हो, इस केस में तुम्हारे को 25% मिल जाएगा। सपोज उसने दिए जो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करवा, मतलब ड्राफ्ट करवाते हैं, उन्होंने कहा भाई हम आपसे 25,000 रुपीज़ लेंगे, तो कहा भाई पर एप्लीकेशन तुम्हारे 5,000 या 8,000 है। और जो पेटेंट एजेंट अपना ऑफिस रन करता है, उसके ओवरहेड्स भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, उसका ऑफिस का भी खर्चा होता है, रेंटल भी होता है, तो वो उसमें से 15-20,000 रखेगा 25,000 में से। ठीक है। राइट सर। तो जो पेटेंट एजेंट जो ड्राफ्ट करेगा पेटेंट एप्लीकेशन, उसमें जो क्लेम की जो चीज़ है कि आपको प्रोटेक्शन किस चीज़ के ऊपर ले रहे हो आप, तो जो प्रोटेक्शन ले रहे हो, वो जो प्रोटेक्शन है जिसके ऊपर अगर किसी ने, मतलब जैसे बताया कि 70 डिग्री सेल्सियस है या 60 से 80 है, तो आपको उसी में प्रोटेक्शन मिल रहा है जो आपने क्लेम में लिखा है। ओके, योर इन्वेंशन इज प्रोटेक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ योर क्लेम। आपके क्लेम के बाहर की चीज़ है, दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय योर पेटेंट। ओके, इज इट क्लियर? दिस पॉइंट क्लियर हो गया ना सर? तो कभी कोई चीज़ रहे, मतलब डोंट टेक एनी डाउट विद यू, पूरा सारा क्लैरिफाई कर लो, ठीक है ना? और इसमें से बात करके जो होगा उसमें से कुछ पॉइंट लिख लो। मैं इतनी देर तक हम बात करते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट उसमें से एक लाइनर लिख लो पॉइंट, ठीक है, अपने हिसाब से जो लिखना चाहते हो। अच्छा, नाउ
तो पेटेंट एजेंट का रोल समझ में आ गया। अच्छा, पेटेंट एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गिव्स मोनोपोली to the inventors or the companies inventing through patents, but government discourages continuation of monopoly, and the discouragement is by way of having the system of maintenance of patent annually, that means renewal of the patent, and progressive maintenance fee or progressive renewal fee structure जो हमने देखा था ना पहले वाली स्लाइड में। And since the progressive maintenance fee is there, 6,000 becomes 60,000, 8,000 becomes 80,000, 2,000 becomes 20,000, and all that. So those companies who are having several thousand patents filing, and they have got several thousand patents in force. In force means which they are paying the renewal fee. Now, if they are paying the renewal fee in the first, say, third to 6 years, third, fourth, fifth, 6 years, they are paying 10% only of the last 5 years fee. Okay. दिख रहा है ये? मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखो, ये 10x हो गया ना, a into 10। ए जो था 800 बिकम 8,000, 2,000 बिकम 20,000, 4,000 बिकम 40,000 लास्ट 5 years में। तो जब इतना ज़्यादा फीस हो जाता है आपका, तो हाउ मेनी पेटेंट्स यू वुड लाइक टू मेंटेन? यू लाइक टू मेंटेन 5,000 और ओनली 1,000? आपका है कि 800 करोड़ रुपीज़ का पेटेंट मेंटेनेंस बिल का खर्चा है, तो 800 करोड़ रुपीज़ खर्चा करना है, 200 करोड़ रुपीज़ खर्चा करना है पेटेंट रिन्यूअल का? सर कम करना है। कम करना है, तो आपको 800 की जगह 200 करोड़ में कहाँ? हाँ, it depends on how much they are getting exactly, from exactly. that. How important the patent is, है ना? Yes sir, yeah. हाँ, तो जो इसीलिए आपको वो जो है ना, जो कितना इम्पोर्टेंट है वो पेटेंट, उस चीज़ को बोलते हैं पेटेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस, कि किस पेटेंट में कितना खर्चा आपका हो रहा है और किसमें कौन कौन से पेटेंट आपको रिन्यू करने हैं और कौन से पेटेंट रिन्यू नहीं करने हैं। आपके पास में मान लीजिए 2000 पेटेंट्स हैं, तो पर डे कितने हो जाएंगे? 300 वर्किंग डेज के हिसाब से, 250 वर्किंग डेज के हिसाब से। तो डेली आपको 4 पेटेंट जो हैं, चार नहीं 40 पेटेंट, ठीक है। आपको इतने सारे पेटेंट्स हैं जो कि देखना है कि इनमें से किसको रिन्यू करना है, किसको नहीं करना। तो हु विल डिसाइड दिस? जो इन्वेंटर है वही तो डिसाइड करेगा ना प्राइमरली, और जो उनके मार्केटिंग के लोग हैं जो यूज़ कर रहे हैं पेटेंट को, जो R&D के लोग हैं कि हम कितनी पेस पे R&D कर रहे हैं। तो जिस पेस पे आप रिसर्च कर रहे हो, जितना ऑब्सोलिसेंस है रिसर्च का, इन सब चीज़ों का मिलकर एक टीम होती है जो डिसाइड करती है कि भाई इस पेटेंट को हमें रिन्यू करना है कि नहीं करना। और वो सारा कंपनी के लोग हैं और कंपनी का ही खर्चा है। दैट इज़ नॉट, दे आर नॉट, यू नो, जो पेटेंट रिन्यूअल का खर्चा जैसे IIT में होता है टैक्स पेयर्स मनी से आता है, वहाँ पर टैक्स पेयर्स मनी से कुछ नहीं आता है, कंपनी को खुद ही खर्चा करना पड़ेगा। IIT में तो हर प्रोफेसर कह देते हैं कि हमारा आप US में पेटेंट फाइल कर दो, जर्मनी में कर दो, यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, ऑस्ट्रेलिया में भी कर दो। उसके लिए कि आपको 30 लाख 40 लाख रुपये लग जाएंगे, क्योंकि प्रोफेसर कुछ थोड़ी दे रहा है उसमें से, उसको तो खाली ये कहना है कि भाई हमारा आप पेटेंट फाइल कर दो। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कंपनी को अपने ही खर्चे करने हैं पेटेंट रिन्यूअल के लिए और पेटेंट फाइलिंग के लिए और रिक्वेस्ट फॉर पेटेंट एग्जामिनेशन। तो इन सब के खर्चे जो कंपनी को करने हैं, तो कंपनी देखती है कि विच आर द पेटेंट एप्लीकेशंस जिनके लिए हमें रिक्वेस्ट करनी है फॉर एग्जामिनेशन, किन पेटेंट एप्लीकेशन वी हैव टू गो फॉर द एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन, किस चीज़ के लिए हमें 2 साल के बाद में थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ ईयर में रिन्यू करना है। चलो ठीक है, शुरू के 4 साल कम पैसा है, 800, 2000, 4000, और उसके बाद में 12,000 हो जाएगा बड़ी कंपनी के लिए, फिर 24,000 हो जाएगा, फिर लास्ट के 5 ईयर्स में 40,000 पर ईयर, नॉट टोटल, पर ईयर। तो इसको 5 साल करेंगे तो 2 लाख रुपये खर्चा हो गया ना। तो इज इट 2 लाख वर्थ इट? हर साल उसको लास्ट के 5 साल में करें। तो दिस गिव्स द कंसेप्ट ऑफ योर पेटेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर वन क्वेश्चन, हाँ। एक्चुअली सर ये कॉस्ट उल्टा नहीं है सर? एक्चुअली जितना टाइम हो जाएगा तो कॉस्ट तो कम होना चाहिए ना सर जनरली, क्योंकि वो 16 साल से दे ही रहा है उसके। तो इनिशियली जनरली क्या होता है कि कोई चीज नया आता है तो ज्यादा होता है, पर धीरे धीरे कॉस्ट कम होता है, बट यहाँ तो उल्टा है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पर्पस क्या है हमारा, बताओ? पर्पस है कि पेटेंट को बचाना है इतने साल। नहीं, गवर्नमेंट ने लगाई है ना फीस, to discourage monopoly.
टू डिस्करेज मोनोपोली, ठीक है, ओके ओके, डिस्करेज अच्छा कंटिन्यूएशन, डिस्करेज मोनोपोली, ओके ओके ठीक करेक्ट। है ना, डिस्करेज कंटिन्यूएशन ऑफ मोनोपोली, दैट इज द पर्पस। और डिस्करेज करने के लिए मेंटेन एनुअल का सिस्टम रख दिया, नहीं तो आप कहोगे भाई एक बार हमने कर दिया फाइल 20 साल के लिए हो गया हमारा तो पेटेंट, तो आपको हर साल जाके करना पड़ेगा और पैसा देना पड़ेगा। तो आप देखते हो कि 10 साल के बाद में ज़रूरत नहीं है और नए पेटेंट आ गए तो आप उसको छोड़ दोगे ना रिन्यू करना, तो मोनोपोली खत्म हो गई आपकी। अच्छा, दूसरा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रोग्रेसिव मेंटेनेंस फी। अब जो प्रोग्रेसिव मेंटेनेंस फी है ये इतनी ज़्यादा है, देखो ना कितनी हो जाती है ये, 4000 बिकम 40,000 रुपीज़ लास्ट 4 ईयर्स में। हर साल हर पेटेंट का जो यहाँ पे 4,000 या 40,000 देना है आपको ईच ईयर। तो इतना एक्सपेंसिव हो जाता है उसको रिन्यू करना कि आप उसको जो बहुत ही असेंशियल है उन्हीं को करोगे। तो जो गवर्नमेंट का पर्पज़ है कि टू डिस्करेज मोनोपोली, वो मीट हो गया ना गवर्नमेंट। तो इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट बीइंग सोल्ड इन द मार्केट कि नया प्रोडक्ट है। जो मैंने बताया था कि जो मैंने पहला पेन ड्राइव खरीदा था वो 5,000 रुपीज़ का खरीदा था, 56 MB का, 56 MB 5,000 रुपीज़। और उसके बाद में उसके प्राइसेस कम होने लगे, उसका 500 रुपीज़ रह गया 56 MB का, और 1 GB 2 GB 5 GB 12 GB आने लग गया। 12 GB का था 2,000 रुपीज़ का, और मैंने उससे पहले लिया था कुछ साल पहले, वो था 56 MB का 5,000 रुपीज़ का। तो ये है बेसिक चीज़ कि प्रोडक्ट में प्राइस कम होती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और ये पर्पज़ है डिस्करेजमेंट ऑफ द मोनोपोली। ओके सर एक कमेंट इसी से रिलेटेड, सर हाँ। जैसे प्रोडक्ट में प्राइस कम होता है और पेटेंट होल्ड करने में प्राइस बढ़ता है, पर दोनों चीजें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जुड़ी होंगी, शायद इस एक पर्पज ये भी गवर्नमेंट का होगा। अगर मैंने कोई चीज डिजाइन करी है ना, होल्ड ऑन द पेटेंट, तो कोई और है जो उसी में एक हल्का सा टिंकरिंग करके उसका एक इम्प्रूव वर्जन लाना चाहता है, ही वोंट बी एबल टू डू दैट बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग दैट फ्रीडम। उसका नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, he has full freedom to do anything additional research. He can do further research on your patent, but he cannot license it. तो He वो cannot प्रोडक्ट license मेरा ही it रह without जाएगा। taking a prior license from you. जिसको याद है वो हमने कहा था कि एक जो पेटेंट है, आपके जो पेटेंट है उसमें यू हैव टू डिपेंडेंट पेटेंट है आपके और के पेटेंट के ऊपर, तो यू हैव टू टेक ए क्रॉस लाइसेंस। क्रॉस लाइसेंसिंग की बात की थी, और स्टूल चेयर और आर्म चेयर की बात की थी हमने, इफ यू वर देयर इन दैट यस, क्लास। हाँ सर, यस कि आर्म याद है चेयर ना? में उसके आर्म्स हाँ में भी बहुत सोफिस्टिकेशन है, हाँ, तो जो आर्म चेयर जैसे बना ली, और पहले वाला अगर चेयर का पेटेंट विदाउट आर्म वाली चेयर है, उसका पेटेंट अगर इन फोर्स है, तो यू कैन डू रिसर्च, यू कैन फाइल ए पेटेंट, बट यू कैन नॉट लाइसेंस इट विदाउट टेकिंग ए क्रॉस लाइसेंस फ्रॉम द प्रीवियस लेवल पर, प्रीवियस स्टेज ऑफ द रिसर्च, जिसका कि पेटेंट इन फोर्स है। ठीक है, और आप उससे लाइसेंस लेते हैं तो आप उससे कि 1-1 साल का लेते हैं, और जो एग्रीमेंट करते हैं उससे, क्यों आपकी जो फर्दर लाइसेंस देंगे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उस हिसाब से डेवलप करेगा। तो वो कहता है कि भाई आप मुझे लाइसेंस दे रहे हो तो मतलब मुझे है कि 5 साल का लाइसेंस दो कम से कम, जिससे कि मैं नया अपना डाई बनाएं, कुछ और चीज़ बनाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लांट एंड मशीनरी को उस तरह से गेयर अप करेंगे। तो वो ये थोड़ी कि आपको 6 महीने साल भर के लिए करेंगे, तो दे ऑल्सो वांट कि 5 साल के लिए करें। तो अगर मान लीजिए पहले वाले का जो पेटेंट है, आप उससे जो क्रॉस लाइसेंस लेंगे, तो उससे कहेंगे कि भाई हम 5 साल तक इतना होगा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन योर पेटेंट इज इन फोर्स। ठीक है, मतलब पहले वाले का जो पेटेंट है वो इन फोर्स, मान लीजिए उसने रिन्यूअल फी देनी बंद कर दी, तो इट इज इन पब्लिक डोमेन, तो फिर आपको क्रॉस लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। जब आप क्रॉस लाइसेंस की जरूरत नहीं है तो क्यों आप 5 साल तक उसको पैसा देंगे फालतू में। तो आप कहेंगे वी टेक द क्रॉस लाइसेंस फ्रॉम यू फॉर लाइसेंसिंग आवर टेक्नोलॉजी at this terms and conditions, subject to the condition that your patent is in force। ठीक है ना, तो पहले वाले को 40,000 रुपये दे के जो भी कुछ है उसको अपना रिन्यू कराना पड़ेगा, और वो कहता है कि मैं नहीं कराता, तो आपको उसी समय से आपका रॉयल्टी देना उसको बंद हो जाएगा। ठीक है ना, आपका तो कंडीशन ये थी कि उसका पेटेंट इन फोर्स है, और उसने गलती से भी उसको रिन्यू करना नहीं किया, उसने गलती से, और उसका 1 साल निकल गया, तो उसके बाद उसको रेस्टोर भी नहीं कर सकता। वो 6 महीने तक तो रेस्टोर कर सकता है, उसके बाद में रेस्टोर भी नहीं कर सकता। मान लीजिए 7 महीना हो गया, नहीं कर सकता रेस्टोर उसको, तो वो तो पब्लिक डोमेन में आ गया, तो आप उसको क्यों लाइसेंस ही देंगे उसको।
तो फिर गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? अब मैं चाहे 20 साल के लिए वो किसी चीज को आई होल्ड ऑन टू माय पेटेंट, हाउ इज गवर्नमेंट गेनिंग आउट ऑफ इट? गवर्नमेंट इज डिस्करेजिंग कंटिन्यूएशन ऑफ मोनोपोली। ठीक है, डिस्करेजमेंट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ मोनोपोली। और चाहो तो मैं इसको वरदाना से एरिया ब्लैक करता हूँ। ठीक है, बट सर इसमें तो एक नुकसान है ना, अगर वो मतलब कोई अगर पेटेंट बनाता तो वो तो चाहेगा ना कि उसकी मोनोपोली रहे, ताकि तभी तो इनोवेटिव आइडिया पे काम करेगा फिर। हाँ बिल्कुल ठीक है। हम सर इसमें जैसे इंटेल की चिप्स का है, तो यूएस का इंटेल को फुल सपोर्ट है, तो उसमें हाँ, तो उसकी मोनोपोली है ना सर? मोनोपोली नहीं है, उसकी क्वालिटी है। अच्छा, आप कहते हो मुझे बाटा के जूते लेने हैं, अब अभी तो बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, पर अब से 20-30 साल पहले अप टू लेट 80s अर्ली 90s खाली बाटा की ही एक कंपनी थी जिसका कि जूता मतलब द अल्टीमेट माना जाता था इंडिया में, कि अच्छा भाई आपने बाटा की जूता है तो मतलब ठीक है, यू आर द बेस्ट क्वालिटी। मतलब आप कोई भी पहन रहे हैं जूता इंडिया में, जो इंडिया से बाहर जाते थे बहुत रिच लोग होते थे उनकी बात छोड़ दो, और जो इंडिया में जो रहते थे और फॉरेन ट्रैवल कम होता था उस ज़माने तो बहुत कम होता था, तो आपने अगर बाटा के जूते हैं तो अच्छा भाई आपके पास ना यू आर वन, आप क्या बाटा के जूते पहन रखे हैं आपने, क्योंकि बाकी जूते 60% प्राइस में मिल जाएंगे आपको। और जो छोटी कंपनीज होती थी, कोई बालू जॉब होती थी और कई सारी छोटी छोटी कंपनीज होती थी जो कि रीजनल लेवल पे काम करती थी, है ना, कोई हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, कोई चेन्नई बेस्ड कंपनी है, कोई आगरा बेस्ड कंपनी है, तो उनका जो रीजन था वो बहुत लिमिटेड होता था। और बाटा का है कि एक बाटा यू नो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द बाटा's बैकग्राउंड। Bata company is headquarter, I mean the Bata owner is Canadian। अभी जो बाटा का जो होता है उसकी डेथ होगी, उसका बेटा बाटा मस्ट बी द ओनर नाउ, तो दैट इज़ ए कैनेडियन कंपनी। एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इट वॉज नॉट इन कैनेडा, इट वॉज इन चेक रिपब्लिक। ये ओरिजिनली बाटा इज चेकोस्लोवाकिया का जो था ना, चेक रिपब्लिक है आजकल, क्यों स्लोवाकिया अलग कंट्री हो गया, चेक रिपब्लिक अलग हो गया। पहले अब से 20-25 साल पहले चेकोस्लोवाकिया एक कंट्री था, अब दो हो गए, एक चेक रिपब्लिक कहलाता है, एक स्लोवाकिया कहलाता है। तो चेक रिपब्लिक जो है जिसमें प्राग है, तो ये इनकी फैक्ट्री प्राग में ही थी बाटा जूते की, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफ़ी वहाँ पे यूरोप में हुआ था सारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद में ही शिफ्टेड टू कनाडा। वहाँ पे कोई वॉर नहीं होता ना कनाडा में, बड़ा शांति प्रिय जगह है। तो बाटा का जूता जो सबसे अच्छा माना जाता था। तो इस तरह से है कि जो आपके पास में कोई भी चीज़ है, आपका जो इसका गवर्नमेंट का पर्पस है कि आपकी मोनोपोली को डिस्करेज करें, आप उसको उस समय तक रखें पेटेंट जब तक कि आपको उसका रिक्वायरमेंट, और उसके बाद में इतनी फीस बढ़ा दी है गवर्नमेंट ने कि आप उसको एक साल भी एक्स्ट्रा नहीं रखना चाहेंगे अगर वो यूज़फुल नहीं है तो टोटल मोनोपोली 20 साल की कम होगी ना ऑटोमेटिकली। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ, एक जना बोले एट ए टाइम। यस सर, ये क्वेश्चन ये था कि जैसे ये लाइसेंसिंग होता है, तो इज इट मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सम कंपनी डजंट वांट टू गिव द लाइसेंस? हाँ हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो उस केस में क्या करेगा? मतलब वो सब अगर मतलब इज देयर एनी वे इट कैन बी आर्ग्यूड, या ओके फिर कुछ नहीं कर सकते? नहीं, उसकी रिसर्च है, वो उसकी मर्जी है कि जो करेगा। आपके पास में आपकी कार है, कोई पड़ोसी कहता है मेरे को कार दे दो, आपकी तो नहीं देता मैं, आपकी प्रॉपर्टी है ना। ओके। वो कहता है कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, आप कहते हैं चलो यार बेचारे को कोई पेरेंट्स की तबीयत अचानक खराब होगी, चलो मैं गाड़ी में तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, वहाँ तो आपकी चैरिटी काम है। पर ये तो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है ना, इसमें चैरिटी क्या है? ये तो ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शन हैं, इसमें ह्यूमन एंगल तो नहीं है ना इसमें कुछ भी। राइट सर। तो मुझे अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है अपना किसी को लाइसेंस नहीं देने में, तो मैं नहीं देता किसी को लाइसेंस। ये बट जो आता अगर है जो पोस्ट इट आता है ना, जैसे हम स्टिक एडेसिव जो होता है थोड़ा पेपर पे यस स्टिकर लगाते हैं ना, यस सर। अब तो इसका पेटेंट जो था वो ख़त्म हो गया, 20 साल से ज़्यादा हो गया, काफ़ी समय हो गया, अब तो 35-40 साल हो गए। जब ये आया था तो इट वाज मतलब इट वाज
पोस्टेड की कंपनी ही बनाती थी और उसके ऊपर इसका पेटेंट था अपनी कंपनी का। उन्होंने किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया और उन्होंने ये येलो कलर का रखा कि येलो पे आप ब्लैक से लिखो, ब्लू से लिखो या ग्रीन से लिखो या रेड से लिखो, दिख जाएगा आप आसानी से। हो गया या नहीं? क्रीम कलर लाइट येलो के ऊपर आप जिस भी कलर से लिखेंगे दिख जाएगा आपको। तो उन्होंने उसको उसी तरह से पोस्ट इट के नाम से उसको ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कराया। इन्वेंशन था एंड दिस इन्वेंशन वाज नॉट एन इंटेंडेड इन्वेंशन, इट वाज एन इन्वेंशन बाय फ्लूक। जो एक गैराज में एक आदमी काम कर रहा था, मैकेनिक, तो उसने वो जो होता है ना वो ग्रीस वगैरह इस टाइप का था, कोई उसका वो था कुछ लुब्रिकेंट टाइप का, तो ड्राई टाइप का लुब्रिकेंट था। लुब्रिकेंट थोड़ा लिक्विड हो जाता है उसका, मतलब ड्राई वर्जन ऑफ लुब्रिकेंट समझ लो। जो हम कहते हैं ना साइकिल में, जब बचपन में सबने साइकिल चलाई है तो उसका वो जो होता था ना उसमें हम ग्रीस लगवा के लाते थे ना थोड़ी सी। राइट सर। तो वो ग्रीस टाइप का ही था, थोड़ा हार्ड सा था। तो उसके ऊपर उसका रात को वहाँ पे है कि उसका कुछ कागज़ पड़ गया, सुबह उसने निकाला तो उसने देखा अरे कागज़ के ऊपर तो बिल्कुल इंप्रेशन नहीं हुआ इसका। तो क्या है, ये तो बड़ी सी चीज़ है, इसको तो है कि हम इसको कहीं करके कुछ कागज़ के ऊपर लगा दें और कागज़ के ऊपर इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। पहले अगर आप लगाते तो स्टेपल करोगे तो छेद हो जाएगा, आप गम से लगाओगे तो वो निकालोगे तो फट जाएगा। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके दिमाग में आइडिया आया तो उसने कहा तो पेटेंट कर लेते हैं। तो वो एडेसिव वाली जो थी उसकी क्लेम उसने था, उसको इस पर्पज़ के लिए उसने उसको वो किया। उस समय अब से 25-30 साल पहले भी वो जो पोस्टेड था इट यूज्ड टू बी 35 रुपीज़। कैन यू बिलीव इट? छोटा सा पैड आता था वो 50 शीट वाला, छोटा सा 1.5 इंच बाय 1.5 इंच या 2.5 इंच बाय 1.5 इंच, छोटे छोटे से होते 35 रुपीज़ के आते थे। वेरी हाई रॉयल्टी थी। तो जिसको उसने लाइसेंस दिया दैट वाज ए एक्सक्लूसिव लाइसेंस। ये जैसा भी रहा होगा, आई हैव नॉट गॉन इनटू डिटेल्स ऑफ इट, बट इट वाज ए ओनली वन कंपनी वाज मेकिंग इट पोस्टेड। और जब पेटेंट खत्म हुआ तो वो अब देखो ना कितने तरह के नाम से वो होते हैं, वो पोस्टेड के कितने वर्जन्स आ रहे हैं आजकल। और कोई ब्लू कलर में आता है, कोई ऑरेंज कलर में आता है, कोई येलो कलर में आता है, कोई ग्रीन कलर में आता है, कितने तरह के आते हैं आजकल। और जो होता है ना पेज का क्या बोलते हैं उसको, फ्लैग बोलते हैं ना, झंडा फ्लैग लगाते हैं ना पेजेस के ऊपर कि वही इंपॉर्टेंट पेजेस के ऊपर आपने कुछ लगा दिया, बुक मार्क लगा देते हैं। तो वो स्टिकर लगा देते हैं, उसमें स्टिक कर जाता है। तो आपको फट से आपको कोई कौन सा पेज उसके ऊपर लिख भी देते हैं आपकी क्या है ये, इसके अंदर एनेक्सर 1 है, एनेक्सर 2 है, एनेक्सर 3 है। जब कंपनी बोर्ड की मीटिंग होती है तो उसमें मीटिंग का एजेंडा होता है वो 100-150 पेज का होता है। और 100 पेज में उनको है कि उसका एक जो इम्पोर्टेंट होते हैं उस पर लिख देते हैं कि भाई ये वाला यहाँ पर, ऑल्दो देयर इज रिटन एनेक्सर भी लिखा हुआ है तो ऊपर और लगा देते हैं। आपको है कि कोई है कोई चीज़ है जो आपके सिग्नेचर के लिए आती है हायर लेवल पे, तो मान लीजिए आपको 8 जगह साइन करने हैं। अब एक आदमी कहाँ तक याद रखेगा कि इन किन 8 जगह पे साइन करने हैं। तो जो 25 में से 30 पेजेस में जिन 8 पेजेस पे साइन करने हैं वहाँ पे हल्का सा पेंसिल से क्रॉस बनाते हैं जो बाद में इरेज कर देते हैं, और उन सब पे एक ऊपर का स्टिकर लगा देते हैं और आप उस पर साइन कर देते हैं, वो बाद में इरेज कर देते हैं, वो स्टिकर भी हटा देते हैं। तो इसके इतना सारा यूज़ है, इसका बहुत यूज़ है। तो उन्होंने किसी को ज़्यादा को लाइसेंस नहीं किया, एक ही को किया या खुद ने बनाया जो भी कुछ किया उसने। तो ये समझ में आया ना कि ये जो कोक के, पेप्सी के और बियर के कैन आते हैं ना, डिड आई गिव यू दैट एग्जांपल और नॉट? Sir, you did give. दिया था ना एग्जांपल? कैन के ऊपर जो ऊपर जो लगा रहता है खोलने का सर। हाँ, खोलने का जो है ना। तो उसका जो टेक्नोलॉजी थी उसको कोका कोला ने कहा कि यू गिव अस एक्सक्लूसिव लाइसेंस। दैट मीन्स कि कोक के अलावा कोई और नहीं बनाएगा। तो कोक अगर कैन बना के बेचेगा तो कोई और कंपनी, वर्ल्ड में कोई कंपनी नहीं बना सकती कैन वाला वो सिस्टम। तो कोक की एक हाई प्राइस रेंज में और मार्केट बढ़ जाएगा, उसका मोनोपोली रहेगी। पर इन्वेंटर ने कहा कि नहीं भाई, आई विल नॉट गिव यू, आई एम हैप्पी टेकिंग लेसर दिस थिंग। सपोज थ्योरेटिकली कि सपोज 1 रुपये दे रहे हैं वो उसके रॉयल्टी के आज की डेट में, और उन्होंने कहा हम 2 रुपये दे देंगे रॉयल्टी, डबल देंगे सपोज। तो कहता है कि आप डबल देंगे नहीं, मैं तो आपको कोक से 1 रुपये, आई एम हैप्पी
क्योंकि मुझे पेप्सी भी 1 रुपये देगी और जो बाकी कंपनी है वही मुझे 1 रुपये देंगी, बियर कंपनी मुझे 3 रुपये देगी इसके। तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी जगह हम उसको लाइसेंस करेंगे, वाई शुड आई गिव यू एक्सक्लूसिव लाइसेंस। तो उसने कोक को एक्सक्लूसिव लाइसेंस से मना कर दिया। उसने कहा कि इट विल बी नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव लाइसेंस एंड नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस इज, एक्सक्लूसिव लाइसेंस देने के बाद में वो जो पेटेंट है उसकी प्रॉपर्टी हो गया, आपको पैसे मिल गए और प्रॉपर्टी उसकी हो गया। वो उसके बाद में उसको बनाए नहीं बनाए, कितने में बेचे, क्या करे, उसकी हेडेक है। आपका एक बार लाइसेंसिंग टर्म्स डिसाइड होगी। अच्छा, एक टोटल लेके असाइनमेंट होता है। आपने अपना पेटेंट जो असाइन कर दिया किसी को, तो उसके पास उसकी 100% मोनोपोली है, तो आपको रॉयल्टी भी नहीं देगा। रॉयल्टी मिलेगी अगर आपने लाइसेंस दिया है तो, और आपने लाइसेंस नहीं दिया, उसको बेच दिया, ठीक है, आपके पास में गाड़ी है, उसको आपने कहीं पे कहा कि छोटे शहर में टैक्सी चलवा दी, वो आपको पर मंथ कितने रुपये देता है कमा के, ओला उबर का मॉडल, तो उनको भी इतना पैसा मिल जाता है ओला उबर को हर टैक्सी वाले से। तो वो एक मॉडल है। दूसरा है कि आपके पास गाड़ी थी, आपने उसको बेच दी, अब उसको टैक्सी चलाए, घर में खड़ी रखे, आपको तो जितना आपने 5 लाख में बेच दी गाड़ी, आपको 5 लाख मिल गया सेकेंड हैंड कार के बाद, आपकी बात खत्म होगी। अब ओनरशिप उसकी है, उसको गाड़ी को रखे, बेचे, उसको जो मर्जी ऐसा वो करेगा उस गाड़ी का, है ना, उसको बोलते हैं असाइनमेंट। ये असाइन योर पेटेंट। जो भी देखा था ना यूएसए के पेटेंट, वो ZSK वाला, कि ZSK ने इन्वेंटर है और वहाँ के रूल के हिसाब से वही पेटेंट कर सकता है। तो पेटेंट एप्लीकेशन में उन्होंने बना रखा है कि असाइन ही कौन है, किसको असाइन कर रहे हो आप, तो उसने एप्पल को कर रहे हैं। तो बात खत्म हो गई, एप्पल को वो असाइन हो गया। अब एप्पल की जो मर्जी आएगी तो करेंगे उस पेटेंट का, ZSK का कोई उसमें ओनरशिप नहीं बची, उसका नाम है एज इन्वेंटर। Sir, one question. हाँ Sir, like, is there no like maximum royalty percentage on patent? Like, नहीं, how much there is ever nothing one there person between agreement between two persons, want? whatever the two parties agree, ठीक है, Like, it is not fixed by government, not like at all, this much maximum you can have. not at all। Okay. आपको, आप कहते हैं कि मुझे है ना 100% रॉयल्टी चाहिए, मेरा बहुत अच्छा इन्वेंशन है, क्योंकि आपने जो कहा कि मैंने कहा कि मैं इसको 20 रुपीज़ का बेचूंगा, वो कहता है कि आप 20 का तो 100 का बेचो तब भी बिक जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट है, पर आप मुझे कि 100% रॉयल्टी देंगे। तो 100 रुपीज़ की चीज़ को आप 200 में बेचेंगे, 200 में वो कह रहा है 100 बिक जाएगा, 100 में रखेंगे, तो आप उसको 100% रॉयल्टी देंगे। तो आप 50 रुपीज़, आपके वो 50 रुपीज़ के जो मतलब जो आपने रखा ना उसका, तो रॉयल्टी का जो है मतलब टोटल MRP माइनस रॉयल्टी, या MRP पे रॉयल्टी होगी तो 50% होगी उसकी। एक सेकेंड, कहाँ से ही जाए, मैं अभी भी पी के चुका हूँ। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। रॉयल्टी Yes, का sir. बिटवीन 2 पर्सन्स, अगर यू से कि यू वांट 50% और 5%, है ना, इट डिपेंड्स ऑन द टू पार्टीज। अगर कोई कंपनी है, कोई रिसर्चर है, कोई इन्वेंटर है, आपने कहा कि भई हमने ऐसा इन्वेंशन किया, ऐसे पॉल्यूशन कम हो जाएगा, तो इंडिया में पॉल्यूशन कम होना चाहिए। और कोई ऐसी कंपनी है जो कि जैसे सुलभ शौचालय वो बनाते हैं, जो कि ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया इंडिया को, इस तरह से उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है पिछले 5 साल में। तो इस तरह से कोई आपका है कि सोशल कॉज के लिए कोई कहा कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा, इस घर में रख लीजिएगा, और आप कहते हैं कि सारे लोग बना लें इसको, जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं सब बना लें, और जितना मैक्सिमम हो इसको कंपटीशन होगा, कंपटीशन हो तो प्राइस कम हो जाएगी अपने आप, अब कंपटीशन होगा, प्राइस कम हो जाएगी, तो सब लोग अपने घर में लगा लेंगे और पूरे कंट्री में पॉल्यूशन कम हो जाएगा, और सब लोग अच्छी ऑक्सीजन लेंगे, अच्छा एयर ब्रीथ करेंगे, तो लोग बीमार कम होंगे तो इंडिया के लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो अच्छा काम कर पाएंगे। आपका बड़ा अच्छा थॉट प्रोसेस है। आपने वो इन्वेंट कर दिया, आपने कहा कि भाई मुझे इसमें कोई रॉयल्टी नहीं चाहिए, मुझे तो इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अच्छा काम कर दिया ज़िंदगी में। तो आपने उसको कहा कि मैं 0 रॉयल्टी पे लाइसेंस देंगे आप, जो बनाना चाहता है उसको लाइसेंस देंगे, जिससे आपको ये मालूम पड़े ना कौन कितना बना रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि 0 रॉयल्टी पे लाइसेंस दे रहे हैं, 0% रॉयल्टी पे। तो आपने मान लीजिए 500
एंटरप्रेन्योर्स को लाइसेंस दे दिया, 500 कंपनीज को लाइसेंस दिया, वो 500 कंपनीज बना रही हैं और आपको बता रही हैं हमने इतना दिया और आपका पेमेंट इसमें से 500 पीसेज मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, आपको हम 0 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया। अब आप मतलब गवर्नमेंट में कहते हैं कि देखो इतना इंडिया में पॉल्यूशन कम हो गया, गवर्नमेंट सर्कल्स में यार देखो इसने कि एक भी नया पैसा नहीं लिया और कितना देशभक्त है, चलो इसको पद्मश्री के लिए कंसिडर करते हैं, तो कोई रिकमेंड कर देगा और बहुत सारे लोग उसको एंडोर्स कर देंगे, वो पद्मश्री मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन बी ऑनर्ड इन अ सोशल मैनर इन सो मेनी वेज, वो सब चीज़ें अलग अलग कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपने जिस टर्म्स एंड कंडीशन में जिसको लाइसेंस दे रहे हैं वही फाइनल है, ओके। सर क्वेश्चन, हाँ सर अगर कोई इज ए पेटेंट इज गुड फॉर ह्यूमैनिटी, तो भी वो मतलब लाइसेंस मतलब वो रोक सकता है क्या? मतलब अगर किसी का भला होता है, मतलब एनी डिजीज या अरे पेटेंट देखो, कोई भी किसी का भला होता है, जिसने वो इन्वेंट किया है उसने 500 1000 R&D के लोगों को सैलरी दी है ना, राइट सर, $10,000 पर मंथ, $20,000 पर मंथ, $50,000 पर मंथ, इतना पैकेज है उतना पैकेज है, उन सब की सैलरी उसने दी है कि अगर उन्होंने मान लीजिए 1000 पेटेंट फाइल किए, 1000 में से 10 पेटेंट थे जिनको भी कॉमर्शलाइज कर सकते थे वो, और एक पेटेंट था जो कि कॉमर्शियल सक्सेस है जिसमें, तो खाली एक ही पेटेंट से तो उनको अपना सारा अर्न करना है ना इन सब की सैलरी। ओके सर, भाई सैलरी कहाँ से दोगे आप? यू आर नॉट द गवर्नमेंट कि आपने RBI से कहा कि इतने पैसे दे दो, RBI ने आपको दे दिए, आपको पैसे कहाँ से आएंगे? सैलरी कहाँ से दे रहे हो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की? सैलरी देने के लिए ही तो आपको ये पेटेंट का कॉन्सेप्ट आया ना कि भाई आपने इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में $5 बिलियन खर्च कर दिया, अब आपको जो पेटेंट 1000 2000 में से एक इतना सक्सेसफुल हुआ जिससे कि आपको इतना फ़ायदा हुआ है, तो आपको फ़ायदा हुआ उसी से सैलरी निकली है ना सबकी। राइट सर, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है देखो, और ऑल गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वांट कि जितनी से ज़्यादा R&D होगी उतनी ही ह्यूमन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन लाइफ होगा, लाइफ क्वालिटी विल इम्प्रूव इक्वलेंट वे। अब मान लो कि अगर हमारे यहाँ पे जो ये कंपनीज हैं कैडिला और जितनी भी हैं, इन लोगों ने अगर ये रिसर्च के लोग नहीं होते किसी में भी, खाली मैन्युफैक्चरिंग के होते और खाली मार्केटिंग के लोग होते, तो ये जो इन्होंने कोवैक्सीन और ये कोविशील्ड और इतने सारे निकाले हैं ना पूरे वर्ल्ड में, कितनी सारी करीब 50 कंपनीज ने, रशिया ने स्पुतनिक, इतनी सारी कंपनीज ने निकाला, क्यों? R&D के लोगों ने निकाला ना ये। और नहीं होते R&D के लोग किसी भी कंपनी में हैं तो इस समय कम से कम 3-4 करोड़ लोग मर गए होते, और ज़्यादा अभी 10 करोड़ की डेथ हो चुकी थी वर्ल्ड वाइड। कंट्रोल में आया है बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन, और वैक्सीन किसने किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोगों ने, उनको सैलरी मिली है कंपनी से, पर उन्होंने 1,000 में दे रहे हैं ये सब 1000-1500 इसी तरह से प्राइसेज हैं इनकी, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम है ना, क्वांटिटी इज़ वेरी लार्ज। आपको 50 करोड़ वैक्सीन लगना है, तो अगर आपको एक वैक्सीन में अगर 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ तो 50 करोड़ में आपको 5000 करोड़ का फ़ायदा हो गया, हुआ या नहीं? यस सर। तो आपका अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो आप उसको कम प्राइस पे कर लेंगे, पर अगर आपका वॉल्यूम बहुत कम है, एक 4-5 महीने पहले आया था, एक टीवी में आ रहा था मॉर्निंग में कि एक इंजेक्शन है उसकी जो प्राइस है कंपनी की वो 10 करोड़ रुपए है, और उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी वो 8 करोड़ रुपए की है, 6 करोड़ की है शायद। तो गवर्नमेंट से उसने कहा कि मेरे बच्चे को ये है और मैं बड़ी मुश्किल से चैरिटी से इकट्ठा कर रहा हूँ पैसा, ये छोटा बच्चा है, तो ऑन वेरी सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन गवर्नमेंट ने स्पेशल डिसीजन लिया कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम इसके कस्टम ड्यूटीज़ को एग्जाम करते हैं 6 करोड़ की, तो उसको खाली 10 करोड़ रुपये देने होंगे कंपनी को, तो 16 करोड़ में आता ना वो इंजेक्शन, और 10 करोड़ कंपनी का आता है। 10 करोड़ में उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो वही उसकी होती 200-400 रुपये होती, 100-200 रुपये होती, बाकी तो सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है ना, और उसकी डिमांड इतनी कम है, बीमारी इतनी कम होती है कि
वही कुछ है कि मतलब पूरे वर्ल्ड में मान लीजिए 100 इंजेक्शन बिके उसके, उसी से इतने $1 बिलियन निकालना है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। अच्छा वो जो FAQs है ना उसमें से मिल जाएगा। मैंने थोड़ी सी दी है इसमें, 4-5 बुलेट पॉइंट ही दिए मैंने, पर उसमें जो है और पूरा दिया है। FAQ बताया था ना उस दिन मैंने कि एनी इन्वेंशन इज फ्रिवोलस एंड ऑब्वियसली कंट्री टू लॉज ऑफ नेचर एंड कंट्री टू लॉ, मॉरलिटी और इंजूरियस टू पब्लिक हेल्थ, और डिस्कवरी ऑफ ए लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंसेज अकरिंग इन द नेचर। जो आपने डिस्कवरी की है, देखो जो डिस्कवरी की है, तो डिस्कवरी इज समथिंग विच इज ऑलरेडी नोन थिंग इन द नेचर, ठीक है। तो डिस्कवरी के ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिलेगा। मियर डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल और फॉर्मुलेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, लाइक पाइथागोरस थ्योरम आपने कर दी पाइथागोरस ने, कि भाई वो है ना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू वो क्या होता है डायगोनल वाले का स्क्वायर, है ना, A² + B² इक्वल टू C²। वो आपने बड़ी अच्छी थ्योरी कर दी, बड़ा अच्छा हुआ। जो रोड बनती है उसमें देख लेते हैं कि भाई वी शुड गो दिस वे, इट विल बी द लीस्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए रोड। डायगोनल बनाएंगे तो आप, बजाय इसके कि लेफ्ट जाओ फिर राइट पे जाओ। तो बड़ी अच्छी थ्योरी है, बहुत फ़ायदा हो गया, कॉस्ट कम हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, पर उसके ऊपर आपको पेटेंट नहीं होगा। मैथमेटिकल बिजनेस मेथड और कंप्यूटर प्रोग्राम पर से और एल्गोरिथम। सर हाँ so what about applications like Android applications? Are they patentable or not? ऐसा है कि कोई सॉफ्टवेयर है, इफ इट इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जिसका उसके एक्चुअल प्रोसेस से ऑपरेशनल सिस्टम से लिंक है, उसका पेटेंट हो जाता है सॉफ्टवेयर का। जैसे एक वॉशिंग मशीन है आपकी, वॉशिंग मशीन में कंप्यूटराइज होता है ना कुछ पार्ट, मतलब कुछ उसका सिस्टम होता है। आप रात को उसका वो लगा के टाइमर लगा के सोते हैं कि सुबह 6 बजे से 7 बजे से सारी वॉशिंग मशीन चल जाएगी आपकी। तो जो टाइमर लगाया आपने, ये जो है इट इज़ थ्रू एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। मतलब इट इज़ नॉट ए क्या बोलते हैं इसको, इट इज़ नॉट ओनली एल्गोरिथम, ठीक है। इट इज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जिससे कि वॉशिंग मशीन चल रही है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज इन्वेंशन। ओके, सॉफ्टवेयर विच आर ऑफ द नेचर विच आर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स which have a direct connection with some machine operations, they are patentable. Okay. But like all the mobile applications are there, that is not like embedded it with a machine. Like there is a Twitter, and if that will be like first invented, will that be patentable or not? आप बताओ ट्विटर से क्या होता है आपका? मशीन से होता है या मतलब खाली सॉफ्टवेयर है ये? एल्गोरिथम है क्या ये? No sir, this is just like Facebook for example. हाँ, So that is just a software, right? खाली सॉफ्टवेयर फेसबुक? That is, yes sir, of course I think so. चलो थोड़ा अच्छे तरह से स्टडी करो ट्विटर को, फेसबुक को, लिंक्डइन को, है ना। इनमें क्या इसका जो इट इज समथिंग जस्ट ए सॉफ्टवेयर और इट इज मोर देन सॉफ्टवेयर? much more than software actually. मोर देन सॉफ्टवेयर। तो फिर पेटेंट होगा ना उसका। जो एल्गोरिथम है आपका, जैसे कैलकुलेशन कर लिया आपने, है ना, आपने कहा कि ये फॉर्मूला है, इसका समेशन xi/yi² होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन xi/yi, या इस तरह से, है ना, समेशन xi/yi² डिवाइडेड बाय समेशन xi² प्लस समेशन yi²। ये आपने उसको फॉर्मूला में फिट कर दिया, है ना, और आपने इसमें x और y की जो कुछ वैल्यू डालेंगे आपको निकल के आ जाएगा, है ना। x की आपने 100 वैल्यू डाली, y की भी 100 वैल्यू डाली, और आपने उसका एल्गोरिथम लिख दिया। तो आपने वो डेटा डाला 100 का और 100 का, उसका आपके पास में तो सॉफ्टवेयर से एल्गोरिथम से निकल के आ गया कैलकुलेशन ओके, दिस इज एल्गोरिथम, है ना। और इफ इट बिकॉज इट डजंट हैव एनी लिंकेज विद एनी मशीन और एनीथिंग, ठीक है, तो वो होता है जो कि कॉपीराइटेबल होता है। दिस सॉफ्टवेयर इज ओनली कॉपीराइटेबल। जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर आर पेटेंटेबल, ठीक है।
Okay, sir. I will do research on that or थोड़ा whatever. हाँ देखो इसमें ना फर्दर रिसर्च करो कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, और जरा सा पेटेंट ऑन ट्विटर, पेटेंट ऑन ये भी करके देख लेना सर्च, ठीक है। और जो हो प्लीज Okay, sir. शेयर विद एवरीबॉडी इन द क्लास, ठीक है। Okay, sir. I will share. I will find it. I will find. रत्नेश है ना? Yes, sir. हाँ रत्नेश, तो मालूम करके ना सारी क्लास में बताना होगा, ठीक है। Okay, sir. राइट। अच्छा, नाउ प्रिविलेज टू द पब्लिक। पब्लिक को क्या प्रिविलेज है? R&D पर्पस के लिए कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है, किसी भी पेटेंट को आप बना सकते हैं प्रोडक्ट को। जैसे कि एक आदमी ने कहा कि स्टूल है, थक जाते हैं हम इसमें बैठे बैठे, तो कहा कि हम 10 स्टूल बनाते हैं और उसको है कि कुछ करते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। 10 स्टूल बना लिए, एक स्टूल के ऊपर उसने वर्टिकल कुछ लगा दिया फट्टा, एक उसने थोड़ा बड़ा स्प्रेड करके लगाया, 10 तरह के मॉडल बना लिए उसने। और फिर उसने कहा कि ये चीज़ ठीक है और इसको हम कॉल करते हैं, वी कॉल इट चेयर, और इसको हम पेटेंट कर लेते हैं। तो जो चेयर का जो पेटेंट होगी, सपोर्ट, बैक सपोर्ट कैसा होगा, उसके ऊपर आपका क्या क्लेम है, वो आपका पेटेंट होगा। तो पेटेंट इज फॉर द क्लेम ऑन द दिस पर्टिकुलर सिटिंग डिवाइस बोलो या सिटिंग इसको जो भी कुछ बोलेंगे हम, तो उसके ऊपर हमने किस तरह से हाउ वी से कि हमारा ये स्टूल के ऊपर क्या लगा है, जैसे कि हम इसको वी कॉल इट चेयर। तो स्टूल के ऊपर पीछे का सपोर्ट होगा, वो 5 इंच का हो सकता है, 10 इंच का, किसी भी विड्थ का हो सकता है, हाइट भी उसकी कुछ भी हो सकती है, 6 इंच हो सकती है, 15 इंच हो सकती है, 20 इंच हो सकती है, 30 इंच हो सकती है। तो वो सारे उसमें ना इतना आप कहो तो कि ऑफ एनी हाइट और एनी विड्थ, कितना अच्छा आपको वो मिल गया ना उससे कवरेज, एनी हाइट एनी विड्थ। तो कुछ होता है ना नीचे से एक छोटा सा पतला सा वो लगा के एक छोटा सा वो मतलब एक रेक्टेंगुलर सा पीस लगा देते हैं ना ऊंचा करके, वो भी कवर हो गया। और एनी हाइट एनी विड्थ क्लेम में आपने डाल दिया, तो आपका जो चेयर का है, तो आप कितने भी स्टूल बना सकते हैं एक चेयर का इन्वेंशन करने के लिए, फर्दर रिसर्च करने के लिए। और दूसरा है कि आपको जो क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आई कैन मेक एनी नंबर ऑफ स्टूल्स, और उसके बाद में मैं लैब में क्या था कि तो स्टूल बनाओ, फिर इससे कुछ और करो, फिर चेयर बनाओ, फिर आर्म चेयर बनाओ। तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्लास में, लैब में, टीचिंग पर्पज़ के लिए आई कैन मेक ए प्रोडक्ट, बट both the people, for further R&D people or for teaching purpose, any teacher, they cannot sell it in the market. Okay, these are the public को जो privilege है, and these are the limitations on the patent rights कि government can use a patent for defense purposes. इंडिया की आर्मी के लिए कुछ चाहिए तो है ना, किसी पेटेंट को यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट अपने डिफेंस के लिए। Then there is a concept of compulsory license, which is more applicable on something which is of very high significance for the social cause, particularly health. एक कंट्री में बहुत बीमारी एपिडेमिक फैल गया, जैसे अभी हुआ है इसका, और एक कंपनी है उसने कहा कि ये हमारा है, और उसने पेटेंट मतलब इन्वेंशन किया, ये वैक्सीन लगा दो, इससे आपका ठीक हो जाएगा हमेशा के लिए। अब और किसी कंपनी ने नहीं किया, कोविड का तो बहुत सारी कंपनी ने कर लिया, पर सपोज़ एक ही कंपनी ने ऐसा किया और वो कहता है कि मुझे आप 50 करोड़ रुपए दो, लाइसेंस देता हूँ मैं आपको 50 करोड़, तो लमसम दो और 100% की रॉयल्टी देना मुझे। आप कहते हैं कि गरीब आदमी को अगर मैं 100 करोड़ में लूँगा तो मैं इसको 50,000 रुपये रखूँगा इंजेक्शन की कीमत, वैक्सीन की कीमत 50,000, तो वो दे नहीं पाएंगे, लोग मरते रहेंगे। तो आप कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, CG के ऑफिस में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि भाई ये है इंडिया में इतने लोग इससे मर रहे हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, और इनको सबको इतना महंगा है ये, मैं इसको लोअर प्राइस पर बेचूंगा जो कि अफोर्डेबल होगी, मैं इसको 500 रुपीज़ में बेच दूँगा 50,000 की जगह। तो इंस्टेड ऑफ 50,000 आई विल सेल इट ओनली इन 500 रुपीज़, मुझे इसका लाइसेंस दे दो। तो ऑन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द केस, द कंट्रोलर जनरल कैन डिसाइड कि okay, we give you a license, and since the license is being given by the controller's office, it is compulsory license, it is not being given by the inventor. तो ये जो है compulsory license concept है हमारे पेटेंट एक्ट में कि कंट्रोलर जनरल कैन गिव लाइसेंस अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस
to any producer for making the product to be sold at reasonable price. और कह दिया कि आप 500 का बना के बेचिएगा, 10% रॉयल्टी उसको दे दीजिएगा जो इन्वेंटर है, जो 50 करोड़ मांग रहा था। तो आपने कहा ठीक है, ये आपका हमने 500 का है तो 50 रुपीज़ पर इंजेक्शन उसको दे देंगे। हमने 1 लाख इंजेक्शन बनाए तो 50 रुपीज़ के हिसाब से उसके 50 लाख उसको हमने दे दिया रॉयल्टी उसकी। तो ये हो गया कंपल्सरी लाइसेंस। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोकेशन ऑफ नॉन वर्किंग पेटेंट। नॉन वर्किंग पेटेंट है, जिसने पेटेंट फाइल किया हुआ है वो भी उसको यूज़ नहीं कर रहा और ना लाइसेंस दे रहा है। तो एनी एप्लीकेंट कैन से कि इसने उसका शायद 3 साल 3 इयर्स का है टाइम लिमिट, कि इतने ड्यूरेशन में आपने इस पेटेंट को यूज़ तो किया नहीं है, और यूज़ नहीं किया तो इट इज़ ए नॉन वर्किंग पेटेंट। तो ऑन द ग्राउंड दैट इज ए नॉन वर्किंग पेटेंट, any person who is interested in using a patent can ask for revocation of that patent on the ground that it was a non-working patent. तो अगर आपने पेटेंट किया है तो उसको यूज़ भी करें। और इट हैज़ नाउ लिंकेज विद द पोर्टफोलियो एनालिसिस, पेटेंट पोर्टफोलियो एनालिसिस बात कर रहे थे ना हम उससे। देन रेस्टोरेशन ऑफ लेस पेटेंट हमने कल बात किया था, रेस्टोरेशन ऑफ द। एक क्वेश्चन यहाँ पे सर। हाँ सर अगर पेटेंट नॉन यूज की वजह से दूसरा व्यक्ति या whoever is interested in working on it can ask for its revocation, so who will he ask, the patent owner or the government or the patent authorities? पेटेंट ऑफिस, रेगुलेटरी बॉडी, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, उसका पूरा नाम है। देखो जहाँ पे पेटेंट ऑफिस में बात करते हैं तो सीजी बोलते हैं, कंट्रोलर जनरल, बिकॉज सबको मालूम है सीजी कौन है, कंट्रोलर जनरल उनका। जब बाहर वाले बात करते हैं तो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स जो IPR की बात कर रहे हैं, और उसका फुल डेजिग्नेशन कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है सर, अगर सीजी को लेट्स से देयर इज अ पेटेंट ऑन अ मेडिसिन एंड वो मतलब 3 साल से यूज नहीं हुआ, एंड आई टेल द सीजी टू रिवोक द पेटेंट सिंस आई वांट इट फॉर पब्लिक सर्विस बेसिकली। नहीं पब्लिक सर्विस नहीं, पब्लिक सर्विस नहीं, इसमें कोई पब्लिक की बात नहीं है, वो पब्लिक सर्विस कंपल्सरी लाइसेंस रीजन लेट्स से मतलब आई वांट, आप कहिएगा कि मेरे को इसको यूज करना है और इन्होंने यूज नहीं किया है, 3 साल हो गए इनको, तो इट इज नॉन वर्किंग पेटेंट, तो टेक्निकल ग्राउंड पे उसको आपको उसको रिवोक कर देंगे वो। एंड अगर रिवोक करने के बाद वो पेटेंट मतलब उस पे किसी का ओनरशिप नहीं होगी, या मतलब वो पेटेंट जो होगा वो जब पेटेंट रिवोक हो गया तो रिवोक का मतलब होता है कि पेटेंट तो रिवोक हुआ मतलब है ही नहीं, उसका पेटेंट खत्म कर दिया पेटेंट ऑफिस ने, तो उसमें उस पे हम उसका रिन्यूअल भी नहीं होगा ना फिर। वंस इट इज रिवोक्ड इट इज इन पब्लिक डोमेन और उसका कोई रिन्यूअल कुछ नहीं होगा, इट इज इन पब्लिक डोमेन, एनीबॉडी कैन यूज। जिसने उसको रिवोक करवाया वो भी और कोई भी उसको यूज कर सकता है। ठीक है। अच्छा हाँ लाइक मतलब सर, लाइक इजंट इट द ऑब्लिगेशन ऑफ मतलब कंट्रोलर जनरल टू मतलब ऑटोमेटिकली रिवोक द पेटेंट्स व्हिच ऑलरेडी हैव बीन टेक्निकल है ना, आपने उसको ग्राउंड दिया कि इट इज नॉन वर्किंग, तो वो उसको कहेगा कि भाई इट इज, वो कंफर्म तो करेगा ना जो उसका पेटेंट ओनर है कि इज इट ए वर्किंग पेटेंट नॉन वर्किंग पेटेंट। और हमें ऐसा मतलब जो एप्लीकेशन के थ्रू है कि भाई इफ इट इज वर्किंग देन टेल अस वेयर इट इज वर्किंग, प्रूफ होना चाहिए ना उनके पास में कि इट इज ए वर्किंग पेटेंट। ओके, तो वो बता दें कि हम यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर रहे हैं इसको, तो यू कैन रिवोक इट। श्योर। तो मतलब उससे पूछेंगे तो सही ना कि ये वर्किंग, भाई पेटेंट ऑफिस में क्या मालूम आपने फैक्ट्री में क्या कर रहे हो, लाखों फैक्ट्रीज हैं, किस फैक्ट्री में कौन किस पेटेंट को कैसे यूज कर रहा है उनको क्या मालूम। तो एक बार आपसे ऑथेंटिकेशन तो लेंगे, हाँ इट इज नॉन वर्किंग पेटेंट, देन ओनली दे कैन रिवोक इट। उनकी अपनी मर्यादाएं होती हैं, उनका भी अपना एक सिस्टम होता है। आपने कहा कि ये नॉन वर्किंग रिवोक कर दो, तो आपके कहने से कर देंगे क्या वो रिवोक? दे हैव टू हैव इट्स प्रूफ, ऑथेंटिकेट करेंगे ना उससे जिसका पेटेंट है। वो कहता है कि मैंने इसका लाइसेंस दिया हुआ है, मैं उसको पूछे बताऊंगा कि वो जिसको लाइसेंस दिया है, पर लाइसेंस दे दिया तो इट इज़ वर्किंग पेटेंट। एक्चुअली आपने लाइसेंस दिया है ना, तो वर्किंग तो हो गया ना। ये जिसने भी लाइसेंस लिया है, चाहे एक प्रोडक्ट बनाया या 1 लाख प्रोडक्ट बनाया है, जिसने लाइसेंस लिया है तो वो वर्किंग हो गया ना उसके लिए। पर हाँ, जो लाइसेंस भी नहीं दिया किसी को, अब जैसे कोई IIT का पेटेंट है, आपने 3 साल तक IIT ने उसको यूज़ नहीं किया,
IIT कहाँ से यूज़ कर लेगा? IIT नॉट ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 साल के बाद में कोई भी कहीं पर भी उसको रिवोक करा सकता है कि IIT ने ये पेटेंट किया और इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं और इसको लाइसेंस भी नहीं दिया किसी को, लाइसेंस नहीं दिया तो इसको रिवोक कर देंगे। ठीक है। अच्छा, नाउ टुमारो आई विल बी टॉकिंग टू यू अबाउट दिस patenting in foreign countries. Okay, so I close our today's session here. Sir, any example of patent revocation? मेरे पास में एग्जाम्पल नहीं है पेटेंट रिवोकेशन का, क्योंकि ये ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इतने लाखों पेटेंट होते हैं, उनमें से कौन किसको कहाँ रिवोक कराता है। बहुत मतलब इट इज़, देखो हमारे पेटेंट एक्ट में ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो पेटेंट एक्ट को पूरा पढ़ोगे तो पूरा भी पढ़ लो, जो उसकी जो जिस्ट है वो मैं बता देता हूँ बीच बीच में, है ना सारी। ओके ओके सर, ओके सर, चलो। यस सर। तो आई क्लोज टुडेज क्लास राइट नाउ। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कितने लोग हो गए अभी बताओ? 47। चलो 37। तो जो मैंने पहले भी बताया था, अपने वो लिख के भी दिया था कि यहाँ पे जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग होगी क्लास अटेंड करने से, वीडियो का लेक्चर सुनने से भी नहीं, उतनी नहीं होगी जितनी कि जो आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है ना, क्लैरिटी। ठीक है, और जो क्लैरिटी को सुन रहे हो। सर वो एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। लाइक तो जैसे लाइक मतलब हमारा स्टार्टअप रजिस्टर करवा रहे हैं प्राइवेट कॉरपोरेशन के रूप में, एंड वी हैव प्लान कि मतलब उसके बाद FIDT में इंक्यूबेशन वगैरह करवा लेंगे। सो डू यू हैव एनी आइडिया कि मतलब वो मतलब कितना इक्विटी डिमांड करते होते हैं, मतलब और सीड फंड्स एंड सर्विसेज FIDT प्रोवाइड? हाँ बताओ। हेलो। हाँ, तो लाइक आई वाज सेइंग कि जैसे हमारा लाइक विद इन 1 or 2 वीक्स हमारा जो स्टार्टअप है वो एक प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में रजिस्टर हो जाएगा, एंड आफ्टरवर्ड्स वी हैव प्लान टू गेट इनक्यूबेटेड इन FIDT बेसिकली। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपको कोई आइडिया है कि मतलब हाउ मच इक्विटी दे डिमांड फॉर द सीड फंड्स एंड द अदर रिसोर्सेज? नहीं, वो यू आर आस्किंग उसका वेंचर कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हो? या मैंने मतलब IIT कितना मतलब वो इक्विटी डिमांड करता है फॉर इंक्यूबेशन पर्पस? देखो ऐसा है कि वो तो FIDT ऑफिस में पूछ लो, नहीं तो मैं पूछ के बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब ये ओरिजिनल फर्स्ट टाइम बना था, आई वाज पार्ट ऑफ मेकिंग दीज रूल्स। तो फर्स्ट टाइम बना था तो 25 साल पहले। ओके। तो फर्स्ट टाइम जब ये सिस्टम चालू हुआ था और ये बन रहा था ना, उस समय आई वाज इन द कमेटी टू मेक द रूल्स। अब उसके बाद में कितनी बार अमेंड हो गया, कितनी बार क्या हो गया, लेटेस्ट जो भी होगा बता देंगे वो तो। ठीक है, ओके, चलो ओके देन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके बाय। थैंक यू सर। बाय।